یہ تاریخی قصبہ تھوتھال ہے جس کا تاریخ آزادی اور تعمیر وطن میں ہمیشہ سنہری کردار رہا۔ تھوتھال گاؤں پرانے میرپور سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، مگر اب یہ نئے میرپور کا ایک سیکٹر بن چکا ہے۔ اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ انگلینڈ یا دیگر یورپین ممالک میں آباد ہیں۔ یہ تاریخی قبرستان میرپور کے ان قبرستانوں سے برعکس ہے، اس لیے کہ یہ منگلا ڈیم کے پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہا، مگر ان قبروں میں ابدی نیند سونے والے مرحومین کے کئی پیارے اب دیار غیر میں جا بسے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ میرپور کے ایک قانون دان منیر حسین ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں جو اپنے دادا حضور کی قبر پہ یہاں پہ فاتح خوانی کے لیے آئے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ تاریخی قصبہ تھوتھال اور یہ جو قبرستان ہے اس حوالے سے کچھ یادیں، کچھ باتیں، کچھ تاریخ یہ AK نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ جی منیر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہ تھوتھال ہے یہ پرانا گاؤں ہے اور اس میں چوری نور حسین کے سسرال اور چوری نور حسین کا گاؤں سمجھا جاتا ہے، اور اس کا جو قبرستان کا دو حصے ہیں، ایک حصہ پرانی آبادی کا جو وہ قدیم ہے اور یہ حصہ جو ہے نیا ہے، یہ ڈیم بننے کے بعد جو اب میرپور شہر آباد ہوا اس کا یہ قبرستان ہے۔ تو اس میں اس قبرستان میں جو رہنے والے ہمارے بزرگ جو یہاں وفات پا چکے ہیں ان قبروں میں مدفون ہیں، ان کی نسل تارک وطن ہو چکی ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی فرانس میں ہے، کوئی جرمنی میں ہے۔ یعنی یہ جو شہر خاموشاں ہے
ان کے بچے ان کی اولادیں وہ ابھی برطانیہ امریکہ اور دیگر ممالک میں آباد ہیں. جی ہاں غیر ممالک میں ہیں, کچھ مڈل ایسٹ میں چلے گئے لوگ, اور یہ لوگ جو ہے نا یہ ان کی دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھے. تو میرے دادا جی چونکہ ہم رجوری سے تعلق رکھتے تھے اور وہ 65 میں مہاجر ہو کے آئے, اور ہم نے بطور امان تو ان کو رکھا ہوا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو آزادی ملے گی تو ہم ان کو اپنے وطن میں لے کے جائیں گے. وطن تو سارا اپنا ہی ایک ہی ہے, لیکن چونکہ ان کی خواہش تھی کہ مجھے میری وہاں جو نسل ہے ہماری وہاں جا مدفون کرنا. چودھری صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس تاریخی قبرستان میں کون سی مشہور شخصیات یہاں پہ دفن ہیں؟ اس میں تو یہ جو اس سائڈ ہیں یہاں تو پرانے جو قدیم یہاں کے باسی جو گاؤں کے ہیں ان کی تو یہ پرانے لوگ ہیں, لیکن یہ جو ہے اس میں مختلف لوگ ہیں جس میں کچھ دانشور ہیں, پروفیسر ہیں, کچھ ڈاکٹر ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ جو ہے نا اپنا نامور ہیں وہ اس میں یہاں مدفون ہیں. اور میرپور شہر کا میرپور ڈسٹرکٹ کا ایک خوش قسمت قبرستان ہے کہ جو ڈہن برد ہونے سے بچ گیا. جی ہاں, یہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ یہ گاؤں میں بچ گیا, اور گاؤں کے ساتھ جو یہ زمین علاقہ تھا اس کو لوگوں نے بڑی کوشش کر کے قبرستان بنا لیا, تو یہ بھی اب مکمل ہونے کو ہے. تو یہ گورنمنٹ کو توجہ دینا چاہیے کہ قبرستان کی حفاظت کے لیے اور نئی جگہ لوگوں کے لیے جو قبرستان کا تعین کرنا چاہیے, تاکہ اس شہر میں ایک خاموشاں شہر خاموشاں جس کو کہتے ہیں یہاں پہ ہم کھڑے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کیمرے اس مائک کی وساطت سے آپ ان تارکین وطن کو کوئی پیغام دیں کہ جن کے یہ آباء و اجداد ہیں جو یہاں پہ اپنی ابدی نیند سو رہے ہیں, کوئی میسج دینا چاہیں گے ان کو؟ جی ان کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ یہ لوگ آپ کی دعاؤں کے یا آپ کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ہو آئے ہمارے پاس دعا کرے, جیسے کہ میں بھی اپنے دادا جی کی دعا کے لیے آیا ہوں. تو یہ بڑی خواہش ہوتی ہے ان لوگوں کی. تو یہ حدیث بھی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں میں جایا کرو تاکہ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنو اور اپنی بھی بخشش کرو. تھوتھال کے اس شہید نے تحریک آزادی میں گراں قدر کارہائے نمایاں انجام دیے. یہ ذات کشمیر کی تاریخی ہستی چودھری نور حسین کا آبائی گھر ہے. کبھی یہ میرپور سے شروع ہونے والی تحریک آزادی کا مرکزی دفتر رہا, مگر آج اس گھر کے مکین یہاں نہیں بستے.
नाजरीन, इस वक्त मैं जिस दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, इस दरवाजे के पीछे एक तारीखी हस्ती बस्ती थी, जनाब चौधरी नूर हुसैन साहब। ये चौधरी नूर हुसैन साहब का घर है और बैरिस्टर सुल्तान का आबाई घर है। हम आपको दिखाते हैं कि इस दरवाजे के अंदर आजकल कौन सी दुनिया आबाद है और इस घर के क्या हालात हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम एक तारीखी घर में मौजूद हैं। ये एक तारीखी शख्सियत चौधरी नूर हुसैन साहब का घर है और आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का आबाई घर है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं चौधरी ज़ीशान राशिद। हम इनसे पूछेंगे कि इस घर से इससे वाबस्ता तारीख़ और इससे वाबस्ता जो यादें हैं वो हमसे शेयर करें और ये बताएं कि इस घर में अब कौन रहता है। जी राशिद साहब। जनाब, ये चौधरी नूर हुसैन साहब का भाई घर है, जो बैरिस्टर सुल्तान का भाई घर है। तो यहाँ पे बैरिस्टर साहब की पैदाइश हुई, उसके बाद फिर वो चेचियाँ शिफ्ट हो गए। ये जो सब घर है, ये बैरिस्टर साहब के रिलेटिव्स हैं, जो उनके कजन्स हैं, ये उनके हवाले ही है। तो उन्होंने इसकी देखभाल कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे इस एक बड़े घर के इस आंगन में आप खड़े हैं, यहाँ से आवाम को कुछ कहना चाहेंगे आप? जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जो अभी हमारे बहन भाई वहाँ पे हैं, जिस तरह की वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम आलमी दुनिया में अपना पैगाम पहुँचाएँ और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको आज़ाद कराएं। जिस तरह आज़ाद कश्मीर में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे मकबूजा कश्मीर में हमारे बहन भाई हैं, वो भी इसी तरह ज़िंदगी बसर करें जैसे हम आज़ाद कश्मीर के लोग बसर कर रहे हैं। और उस तहरीक को जारी व सारी रहना चाहिए जो चौधरी नूर हुसैन ने शुरू की थी। बिल्कुल, वो जारी व सारी रहेगी तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उसको आगे लेके जाना चाहिए। ये पुराना घर साबका प्राइम मिनिस्टर हाउस है और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के खानदान की इस घर से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। थोथाल के लोग बहुत ही पुरखुलूस प्यार करने वाले और जिंदा दिल हैं। यहाँ के उम्र रसीदा बुजुर्ग बतौर खास शजरे सायादार हैं और उन्हें अपनी मट्टी अपनी धरती से सच्चा प्यार है। थोथाल में कोई दुश्मनी नहीं, किसी किस्म नहीं, कोई किसी से नाराज नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। हर मतलब असने तुसा थाना चेक करोगे, किसी ने खिलाफ दरखास्त ही नहीं गई भी माड़ी। थोथाल एक प्यार की बस्ती है, बहुत प्यार की बस्ती है। जैसा लोगों का प्यार करने वाले लोगों ने था, कोई दुश्मनी नहीं, कोई नहीं। कश्मीर ने वाले सारे लोग कम करने लगे हुए कि अल्लाह ताला असा की कामयाब कराए। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि जैसे ये प्यार की बस्ती है जहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई दूरी नहीं है, इस बस्ती के लोग उन बस्तियों को क्या पैगाम देंगे जहाँ पे इख्तलाफात भी हैं, दहशतगर्दी भी है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हैं, फसाद भी है, उनको आप क्या पैगाम देंगे? जनाब, ईमानदारी नहीं गल ये है कि जितना सुकून है ना अमन च या दुश्मनी च, दुश्मनी जड़ी है इस सुकून को नहीं, दहशतगर्दी च कोई सुकून नहीं। बेगनाह लोग मारे जाने न, शहीद होने न। जिंदगी जड़ी असल है ना, ये प्यार मोहब्बत नहीं, अमन जिंदगी है। किसी की अपने तू नीचे ना समझो, ठीक है जी। हर इंसान की तुसा अपने तू बेहतर समझो तो तुसा ना हर चीज तलक या रोला नहीं होगा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं थोथाल के एक बुजुर्ग मोहम्मद रशीद साहब। ये इस गांव की काफ़ी बड़ी तारीख के यानी शायद भी हैं और गांव की जो 200-250 साल पुरानी तारीख है उसको अभी इनको मुकम्मल इल्म है। हम आज रशीद साहब से पूछेंगे कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये कौन सा मकाम है, कौन सी गली है, और जो बैकग्राउंड में हमारा जो एक मज़ार नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो दफन हमारे शहीद हैं, जो एक गाजी हैं जिन्होंने तारीख़ पाकिस्तान में और आज़ादी कश्मीर के लिए बड़ा काम किया, उनके हवाले से हमें बताएं। जी रशीद साहब। फिरोजुद्दीन शहीद हैं, हमारे चाचू साहब हैं, तो 47 शहीद हैं। तो इस गली का नाम भी, इस महल्ले का नाम भी ये है, फिरोजुद्दीन शहीद। फिरोजुद्दीन शहीद महल्ले में हम खड़े हैं, इस महल्ले में खड़े हैं। तो इनका कुछ अहवाल बताएंगे? सुबदार साहब जो शहीद हुए, ये कैसे शहीद हुए, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ये पुराना मीरपुर था उस वक्त, उस वे जनाब ने जंग की है। ये पहला फौज सन, उधर बरतानिया फौज सन, भर्ती आए सन, इधर छुट्टी आए सन, इन्होंने जंग शुरू की है। चौधरी नूर हुसैन ने इन्होंने मीरपुर को आज़ाद कराया। हाँ, मीरपुर को इन्होंने आज़ाद कराया। शहीद हैं। पहला मकाम जरा है
हाथी दरवाज़ा इन्होंने तोड़ा, उधर से ग्रेनेड उन्होंने फेंके, इधर लग गए, शहीद हो गए। चौधरी नूर हुसैन आपके रिलेटिव रिश्तेदार थे? हाँ, रिश्तेदार थे ना, हमारे गाँव वाले थे, ये ऊपर वाले। बुन चेचियाँ चले गए थे, फिर उधर रकबा लिया था, रिहायश उधर थी, पैदाश इधर की है। उनका घर है इधर कहीं? हाँ है ना, अब भी है? हाँ अभी है, इधर भी है, उधर चेचिया में भी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद बैरिस्टर साहब उनके बेटे हैं। हाँ, तो तहरीक आज़ादी में उनका भी बड़ा किरदार था? बहुत बड़ा किरदार था। जो दिल के पठान जितने भी हैं उन्होंने लाए, इधर उनको खर्चा दिया और जंग किया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत का, और तो चले गए अभी, वो भी जन्नत का दोस्त जगह तरफ फरमाए, बहुत अच्छे आदमी थे वो। तो इस बाद इसमें कहाँ पे रहते हैं आप? ऐसे तो था और पैदाइश कहाँ पे? पैदाश सन 1942 ऐसे ससुराल में देखा है। ससुराल का गदर भी देखा है। वो बड़ा मगर नाजर था और कामयाबी हुई इस मीर पर की। अब रिश्तर का वालिद है चौधरी नूर हुसैन, अल्लाह ने वाला हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसने जरिए फायदा हुई थी इस मीर पर के ज़िले की है जी। क्योंकि जनरल यूब था, उस यूब ने इसको मुख्तारी दी, अगर मीर पर तुम फतह करेगा तो मैं आपको तुम्हारे अमशीर बनाऊंगा। उसने फिर अमशीर बनाया भी है। जंग हुआ, उस जंग में बड़ा अफरा तफरी पै गई, मुसलमान बड़े परेशान हुए। हम भी सुधार से जाकर जेल में इलाके में कोई 4-5 महीने 6 में रहे। उसके बाद मठा हुआ, असी वापस आए। इतना गर्दो गुबार हुआ कि इतनी कतराम हुई इन लोगों की कि मुसलमानों को अल्लाह की ज़ात ने मदद से बच गए। कुछ थोड़े शहीद हुए, बहुत बच गए। तो इस वास्ते अल्लाह ताला का बड़ा आसान हुआ उस वक्त जो असन की फतह हुई है। तो ये जंग उस विच का सारी कामयाबी हुई है। जंग 1971 जो हुआ उसमें भी इस रावला कोट के पासे पर हमारी फतह हुई है। तो बड़े काबुल से फौजी वो फर्स्ट एक यूनिट का नाम था, उसमें मेरा भाई भी था। उसने वो बड़ी हमायत की मुसलमानों ने। बड़ी बात ये सबूत है, काफर खंड पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर काफर थे, ये नीचे थे। कामयाब ये हुए, ऐसे हुए कि स्कूटर 2-4 इकट्ठे किए, उनके सामने रात को लाइटें जगाइयाँ। गड्डी का तो कोई उधर सफ़र का मसला ही नहीं सी, स्कूटर ही लेके खच्चर पर लेके गए। तो फिर इन्होंने कामयाबी इस तरह हुई कि वो रान पछवान हो गए, भाई बारिश पई हुई है तो इस पहाड़ी पर किस तरह आ गए। तो फिर गरीला फौज है जी पिछू हो के, जिस वक्त टाइम था 4 बजे का, हमलावारी हुई। फिर ये मुसलमान इंशाअल्लाह 2 शहीद हुए, एक कामयाब हो गए, वो नस गए, ये कामयाब हो गए। सन्नाला बजा मेरा भाई था, उसको भी बड़ा नाम मिला और फीसा लगियाँ बड़े अच्छे तरीके नाल जनाब अली को बड़ा नाम का नाम दिया। वतन अजीज में जारी दहशतगर्दी और करप्शन की वजह से इन लोगों में तशवीश भी पाई जाती है। दौरान रिकॉर्डिंग अवाम ने AK न्यूज और DM ग्लोबल को खराज तहसीन पेश किया और हैदराबाद और डॉक्टर लियाकत मलिक को दादो तहसीन से नवाजा। पुराने थोथाल में आज भी तंग गलियां हैं, मगर ये तंग दिल और तंग नजरों की बस्ती नहीं। थोथाल अब मीरपुर शहर का हिस्सा बन चुका है, मगर यहाँ के बासियों से आज भी कच्ची मिट्टी की खुशबू आती है जो इनकी सादगी और मोहब्बतों की गवाह है। आज AK न्यूज की टीम मौजूद थी पुराने और तारीखी गांव थोथाल में। हमारे बैकग्राउंड में नजर आने वाली तंगो तारीख गलियां बजायर हमें तारीख नजर आती हैं, लेकिन इन गलियों से हमेशा फिक्र के और सोच के और प्यार के और खलूस के यहाँ से चश्मे फूटे। थोथाल गांव से कैमरामैन वकास मुजाहिद और शहजाद मलिक को दीजिए इजाजत, और आइंदा हफ्ते हम हाजिर होंगे किसी और गांव की एक अच्छी और प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री के साथ। DMs डिजिटल से देखते रहिए AK न्यूज। अल्लाह निगहबान।